Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the phylum Cnidarian. Let's start. Phylum Coelenteratae, which is also known as the phylum Cnidaria. Dear students, they show diploblastic organization. Diploblastic organization. Or they belong to grade radiata. तो दो ग्रेड्स हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर। एक ग्रेड रेडिएटा, रेडियल सिमेट्री, और दूसरे ग्रेड बायलेट्रिया, जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है। सो बायलेटरल सिमेट्री दैट इज प्रेजेंट इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एंड the grade radiata or the radial symmetry, it is present in the diploblastic animals. So their body is made up of two layers. That is what we call as the diploblastic. Diplo means two. तो dear students, इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद है, आपने हाइड्रा पढ़ा था, आपने हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आपने हाइड्रा को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा। तो कोई खास रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर वैसे ही नहीं है। हाँ, नर्वस सिस्टम आपने सेकेंड ईयर में जरूर पढ़ा था। दे हैव गॉट डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो कुछ बेहतर हैं, दे हैव सम एडवांस्ड फीचर्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, द पॉरीफेरेंस। ओके, सो लेट अस see what they have got. So the major characteristic among them is they possessed stinging cells. They have stinging cells called nematocysts. Nematocysts. Clear? आपको याद है, इनके कैप्सूल होता है, इनके टेंटेकल्स के अंदर, ये थ्रू आउट द फाइलम ये इनका मेजर करेक्टर है। नेमाटोसिस्ट, द स्टिंगिंग सेल्स। जैसे ही इनका जो प्रे है इनके पास आकर टच करता है, तो आपको याद है इनके वो जो ये नेमाटोसिस्ट है उसके ऊपर एक ट्रिगर होता है जिसको हम स्नाइडोसिल कहते हैं। वो जैसे उसको वो टच करता है, सो द कैप्सूल इज इवर्टेड, और वो उसके ऊपर वो हॉलो थ्रेड होता है, उसके ऊपर पॉइजन होता है और जाकर उस एनिमल को स्टिंग करेगा। और फिर उससे क्या होगा कि छोटा एनिमल होगा तो वैसे ही मारा जाएगा, कोई बड़ा होगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा। सो दिस इज द मेजर प्रॉपर्टी which is present throughout the phylum. Most of them they possess this, the stinging mechanism by the cells called as nematocysts. Now coming towards their body organization, so they have two layers as they are diploblastic. So two major layers are there. The outer, which is called the ectoderm, or which is also called ectodermis. Ecto means outside, and the inner one, that is called endodermis. Endoderm or endodermis, which is also called the gastrodermis, क्योंकि यही वो लेयर है जो कि गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि यही वो लेयर है जो कि इनकी डाइजेशन में हेल्प करती है। और इन दोनों के दरमियान में मौजूद है देयर इज अ नॉन सेलुलर जेली लाइक मिजोग्लिया। अच्छा, याद रखना डिफरेंस मिजोग्लिया का और मिजेनकाइम का। मिजेनकाइम दैट वाज द लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन द पिनाकोडर्म एंड द क्वाइनोडर्म इन द पॉरीफेरेंस, जबकि यहाँ पर ये जो नॉन सेलुलर लेयर है इन बिटवीन द आउटर एंड द इनर
ecto and endotherm, that is mesoglea. Clear? So इसको याद रखना है. It is a non-cellular layer. चलें, अब मूव करते हैं इनके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे. So they have only one opening, एक ही opening है. That is called mouth. That is called mouth. और they have only one body cavity. Only one cavity. उस cavity को क्या कहते हैं? That is called gastrovascular cavity, or which is called coelenteron, or which is also called anteron. और इसमें मौजूद हैं flagellated cells. They have got flagellated cells. और इनकी मूवमेंट से जो है वो the food is mixed and the digestion occurs. Dear students, they lack a respiratory system. They lack excretory system. But they possess the digestive system. जो कि the digestive system is sac type. और sac किसे कहते हैं? एक थैले को जिसकी एक ही ओपनिंग हो. तो आपको याद है जैसे कि हाइड्रा में हमने डिस्कस किया. So this is the opening, a single opening, और उसके इर्द गिर्द these are the tentacles, the vase-like body. Clear? Two layers. Or these are the nematocysts which are embedded within the tentacles. This is mouth. Tentacles. And this is anteron or coelenteron. This is the ectoderm and endoderm, and in between this is mesoglea. Here? और यही इसका डाइजेस्टिव, एक ही ओपनिंग है, ये सैक और ऊपर एक ओपनिंग. और जहाँ तक बात है इनकी as far as the concerned, the nervous system. The nervous system, आपको याद है आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा चैप्टर नंबर 17 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. वहाँ पर they have got diffused type of nervous system. They have diffused type of nervous system. मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके अंदर नहीं है. इस तरह से न्यूरॉन का नेट मौजूद है, इस तरह से, or here and there. So there is no proper, so these are connected with each other forming a diffused type of nervous system. And they possess another property which is known as polymorphism. And what is polymorphism? This is the existence of more than two types which are structurally as well as functionally different individuals in an organism. तो ये दो से मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर के एतबार से भी, फंक्शन के एतबार से भी मुख्तलिफ हों तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. एंड दीज इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, जी डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते थे इनको हम?
They are called zooids. They are zooids. और इसमें मुख्तलिफ तरह के zooids होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के एतबार से, लाइक द गैस्ट्रोजूआइड्स and the gonozooids and the dactylozooids and the tentaculozooids. सो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली इनके अंदर गैस्ट्रो और गोनोजोइड्स मौजूद है. गैस्ट्रो का मतलब ये होगा दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, दे आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. गोनोजोइड्स दे आर रिलेटेड टू गोनेड्स, मतलब के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, और डेक्टाइलो ये कुछ सेंसरी होते हैं, दे आर रिलेटेड टू सम सेंसेशंस. Tentaculozooids, they are involved in the capturing the prey. So इस तरह के मुख्तलिफ तरह के zooids होते हैं. 5 मुख्तलिफ तरह के zooids भी मौजूद हैं इनके अंदर, तो उसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है. There is Physalia, which has got 5 different zooids. Clear? और फाइसेलिया का दूसरा नाम भी याद रखना है. इट इज ऑल्सो नोन एज द पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर्स. और सारी डिटेल्स इसकी मौजूद हैं इन द फर्स्ट लेक्चर्स. यू कैन सी ओवर हियर फॉर मोर डिटेल्स. सो हियर वी आर कंसर्न जस्ट फॉर द एडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देयर forms, most of them they are in the 2 forms, either the polyps or the medusa. चाहे polyps की शक्ल में होंगे या medusa. जो polyps होते हैं they are erect, and while medusa they are umbrella like. Clear? Polyps जो होते हैं ये दोनों भी zooids हैं, ठीक है. जैसे कि आपने हाइड्रा की बात करें तो वो सिंपल पॉलिप है. मेडूसा की बात करें तो इसमें जैसे जेली फिश, जो कि फिश नहीं है, ठीक है, जो कि फिश नहीं है. सो जेली फिश, सो इट इज अ टाइप ऑफ मेडूसा, ठीक है. और मेडूसा जो है इसके अंदर गोनोजोइड्स मौजूद होते हैं, ये यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. पॉलिप्स होते हैं ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, जैसे कि हमने इसकी बात की, तो इसमें इसका लेना देना न्यूट्रिशन के साथ है, जो कि इसके अंदर वो जो इसकी एंडोडर्म है वो गैस्ट्रोडर्मिस भी कहलाती है. सो ये 2 मेजर इनके अंदर लाइफ फॉर्म्स हैं और ये अल्टरनेट करती हैं, ठीक है. सो पॉलिप्स प्रोड्यूस करते हैं मेडूसा और मेडूसा दे विल फॉर्म द पॉलिप्स, लेकिन सब इंडिविजुअल्स के अंदर ऐसा नहीं होता. एज फार एज देयर साइज इज कंसर्न्ड, सो दे आर माइक्रोस्कोपिक, from microscopic to 2 meters in length. And its example is ये 2 meter length वाले याद रखेंगे, हमसे कुछ के लिए मार्क करें. That is Brachioceranthus. That is 2 meter long. Belonging to this phylum, and as far as the reproduction is concerned, so they reproduce sexually as well as asexually. तो asexual reproduction जैसे कि आपको हाइड्रा का मालूम है, they form buds. So asexually they produce by budding. And while sexually, so they form
the gametes, the male and the female gametes, the sperm and the egg cells, और फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल मौजूद है। इनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज नॉन एज ओबिलिया। ये कॉलोनियल है, ओबिलिया और विलेला, ये दोनों ही कॉलोनियल हैं। दे शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ओबिलिया के अंदर देयर इज अ जूआइड विच इज नॉन एज ब्लास्टोस्टाइल। और आपको याद है, आपने लेक्चर्स देखे हैं, ब्लास्टोस्टाइल है, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं द मेड्यूसा, इट प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, और फिर मेड्यूसा जो होते हैं ये वहाँ से निकलते रहते हैं अपरेंट से, एंड दे फॉर्म, दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, दे विल अगेन प्रोड्यूस दैट वेरी काइंड ऑफ सुआइड। सो देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ जो होते हैं वो सॉलिटरी, वो सारे अपनी ज़िंदगी अकेले अकेले गुजार देते हैं सॉलिटरी में, लाइक द हाइड्रा एंड द जेलीफिश एंड द सी एनिमोन। Clear? So they spend their whole life attached to the rocks, especially, ठीक है। ये they are also sessile, ठीक है। इनमें जेलीफिश को निकाल के सी एनिमोन और हाइड्रा, दे आर sessile, while the jellyfish that is motile, it is motile, and hydra, सी एनिमोन along with the ओबिलिया, ये जो कॉलोनी बनाते हैं, दे आर सेसाइल, मतलब ये मूव नहीं करते, ये एक ही जगह पर अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। एंड एज फार एज द एग्जाम्पल्स आर कंसर्न्ड, तो यही इनकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में भी दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सो हाइड्रा चूंकि याद रखिएगा एक सिंगल है, ये पॉलिप है, हाइड्रा इज अ पॉलिप, ये सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार देता है, ठीक है। तो इसमें देयर इज़ नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट हैज़ नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फिर बर्डिंग के जरिए, ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी तरह से ऑल्सो द सी एनिमोन, उसमें भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, जिसको हम कहते हैं एक्टिनिया, इसको एक्टिनिया भी कहा जाता है। सो इट ऑल्सो, बोथ ऑफ देम दे पोजेस नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दोनों में नहीं होती है। और इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट द ऑरेलिया, which is also known as jellyfish, and obelia, they possess the alternation of generations. They have alternation of generations. इनके अंदर alternation of generation होती है। और इसमें सबसे important चीज़ which is extraordinary, that is madrepora. So madrepora आपको बताया गया था, ये समंदर से लेती है कैल्शियम कार्बोनेट को, एंड दे फॉर्म द कोरल रीफ्स, ये कोरल रीफ्स बनाते हैं जो कि समुद्री जानवरों की आमाज का बन जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो फॉर्म स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ये कोरल आइलैंड्स बनाने में भी मदद देते हैं। सो दे आर द मैड्रिपोरा, क्लियर। सो दैट इज these are the most important things which are related to this phylum Coelenteratae.